Yes. Chapter 6 and chapter 1. Okay. Chapter 1, I think that is easy, nahi? Adil? Yes. Yes, ma'am. I think you have problem in this chapter only. Yes, Adil? Yes, ma'am. Yes. Okay. 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 तो बस सिर्फ आप सुनने वाला काम करोगे. I'll ask someone to share the notes also. Prabjot, someone will share notes in the group. I'll ask to add you in the group also. तो सबसे पहले अगर जब आपने एक टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, इट्स एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन. खाना खाना, पचाना, एब्जॉर्ब करना और जो नहीं काम का था उसको एलिमिनेट करना. इस सारे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रिशन. क्लियर एवरीवन? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. अच्छा, थोड़ा सा लेंदी होगा, आप लोग सिर्फ सुनोगे और nobody will leave without completing this lecture. सभी की तभी आप लोग एग्जिट करोगे इस ग्रुप को या इस क्लास को when I asked you to do so. Okay, Kamal, clear everyone? Yes, ma'am. Yes. तो लाइफ प्रोसेसेस में आप लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन का मतलब आप लोगों को बताया मैंने. प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन. इसमें हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड Heterotrophic. yes, heterotrophic. So it is autotrophic और heterotrophic. Autotrophic वो mode of nutrition है जिसमें organisms make their food in the presence of sunlight. The organisms which make their food in the presence of sunlight, they are called as autotroph, along with the use of inorganic substances like CO2 and water. CO2, water और sunlight की presence में खुद खाना बनाते हैं. The process of synthesis of its own food from materials या inorganic material like CO2 and water. This mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. और example क्या है इसके अंदर? Example is Animals. no बेटे. Plants. Green plants. Be attentive in the class. Green plants. Sorry. They are called as no worries बेटे. Green plants, they are autotrophs because they can make their food. बहुत ध्यान से सुनते जाना, सबके लिए रिवीजन है. बहुत अच्छे से हमने टॉपिक किया हुआ है. अब आपको नहीं समझ आएगा आप मुझसे पूछोगे. बाकी सब ओके. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ the process in which organisms make their food from inorganic substances like CO2, water. Okay, they are called as autotrophs. और autotrophs में example है bacteria, autotrophic bacteria and green plants. अब अगर हम बात करते हैं heterotrophs की, तो mode of nutrition in which organisms cannot make their food and are dependent on other organism for their food. और अगर आप लोगों को याद हो, इसकी हमने further types पढ़ी थी. There are 3 different types of heterotrophic mode of nutrition. आप सिर्फ सुनोगे. Saprophytic, दूसरा बताया था पैरासिटिक, थर्ड बताया था होलोजोइक. जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं which feed on dead and decaying plants and animals. जो मरे हुए जानवरों या मरे हुए पौधों पे फीड करते हैं. dead and decaying, याद है कमल? dead and decaying plants and animals, तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक. कमल, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? यस, एग्जांपल दो बेटे सेप्रोफिटिक के. fungi. Saprophytic के मैम. यस yes, fungi. I have written fungi. Yes, some people say it is fungi, it is fungi. Okay, the fungi, The fungi and fungi. it's a fungi. Yes. तो साइंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है प्रोनाउंसिएशन की, बट अगर हम राइटली प्रोनाउंस करें, सुन लो आप लोग, तो आप लोगों की करेक्शन भी हो जाएगी. तो मैक्सिमम पीपल दे से दिस एज फंगी, इट इज कॉल्ड फंजाई. ओके, तो फंजाई किस पे फीड करती है? आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द स्क्रीन. Ma'am, bread. Ma'am, yes, for example, bread. Bread. When it's soaked in water and just from 3-4 days. नहीं, give me the name. बच्चे, tell me the name of organism. अब आपने आंसर दिया है तो बताओ. Fungi on bread.
Acha, fungi on bread. And what is the name of that organism, Janvi? Ma'am, Bread mold. bread mold, sorry. हाँ, bread mold. Bread mold. ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड क्या है? फंजाई, उली लगती है जो ब्रेड पे, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइट. ओके, तो जैसे जानवी ने बताया, जो ब्रेड पे लगती है उली, उसका नाम ही ब्रेड मोल्ड है. नाउ कमिंग टू वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज पैरासिटिक. पैरासिटिक में आप लोगों को मैंने बताया था कि पैरासाइट की बॉडी पे रहते हैं. पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोस, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच पैरासाइट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ, किसके बॉडी पे रहता है? होस्ट. जैसे हमारी बॉडी में आते हैं लाइसिस और टिक्स, जैसे जुएं आती हैं, और डॉग्स पे आपने टिक्स देखे होंगे, दे आर पैरासाइट. पैरासाइट हमारी बॉडी से क्या लेते हैं? ब्लड. तो पैरासाइट का मेन फंक्शन क्या होता है? टू सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट. क्या हमारे लिए हार्मफुल है? Yes. यस यस, बिकॉज दे आर टेकिंग आवर ब्लड, हमारी बॉडी का ब्लड. Ma'am, can we say they take blood and shelter? Yes, shelter and blood. Yes, parasite is completely dependent on host body. Parasite, they derive their nourishment from the host body completely, but they are harmful because they suck our blood. Maximum parasites they suck the blood. फिर उसके बाद पैरासाइट और ये होस्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसी में एग्जाम्पल मैंने प्लांट्स के केस में दी थी, कौन बताएगा मुझे? Cuscuta. कस्क्यूटा. Cuscuta. कॉमन नेम इज Amarvale. Amarvale. हाँ, अमरबेल. बस आप लोगों ने ये चीज भूलनी नहीं है. कस्क्यूटा आप लोगों को बताया था, येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. बच्चे मैंने क्या ग्रुप में शेयर की है पिक्चर कस्क्यूटा की? यस आई गेस. बच्चे इसमें कस्क्यूटा क्या होता है? येलो कलर की वायर्स होती हैं और वो पेड़ के ऊपर फैल जाती हैं. तो कस्क्यूटा इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, येलो इन कलर. ग्रीन नहीं है तो दूसरे से प्लांट से खाना ले रहे हैं, ग्रीन प्लांट से. तो कस्क्यूटा या अमरबेल इज अ पैरासाइट ऑन प्लांट्स, अदर प्लांट्स. ह्यूमन बींग्स में क्या बता दिया था? लाइसिस. और प्लांट्स में एग्जांपल क्या दे दी है? अमरबेल, कस्क्यूटा. थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप ध्यान दो, तो थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस प्रभजोत, व्हाट इज द थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मैम होलोजोइक. होलोजोइक. होलोजोइक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग कंप्लीट इनटेक करते हैं फूड का. इट इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक इन कंप्लीट फूड. मतलब कंप्लीट फूड का मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, स्नेक्स हैं. अगर किसी ने स्नेक को खाते हुए देखा है तो वो पूरा का पूरा निगल लेते हैं जानवर को, चाहे वो रैट हो, चाहे एक ह्यूमन बॉडी हो. अगर आपको पता है कि जो लार्जेस्ट स्नेक ऑन अर्थ, यस नेम द लार्जेस्ट, एनाकोंडा और पाइथन. पाइथन इज लार्जेस्ट स्नेक. तो अगर आप लोगों को पता है कि वो पाइथन आप लोगों की एज 14 इयर्स का एक बच्चा जो है वो आराम से खा सकते हैं. तो व्हाट दे डू इज दे शो दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनगल्फ कर लेते हैं पूरी बॉडी को, पूरा एक जानवर खा लेंगे, फिर धीरे धीरे वो डिग्रेड होता है. मतलब अगर उन्होंने रैट खाया तो आपको दिखेगा कि आज उसकी टांगें चली गई, आज उन्होंने खाना खाया उसके पेट चला गया, फिर उसकी नेक चली गई. तो दिस इज व्हाट इज होलोजोइक. होलोजोइक में हम पूरा खाना खा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन, और इसमें एग्जाम्पल भी बताई थी कि आपने चपाती में पनीर लिया और या आपने चपाती में दाल ली, दही लिया, सैलेड लिया, तो you are taking all the things, all the nutrient in one go. Holozoic mode of nutrition, it is a process of intake of complete food. इसीलिए हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह के हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक. और होलोजोइक में एग्जांपल क्या बताया मैंने अभी? यस, Snake. snakes and Snakes, human lizards. lizards also, human. आई थिंक ये सभी को समझ आ चुका है. ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था. आप लोगों बाकियों के लिए रिवीजन है. सिर्फ प्रभजोत को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी सबको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आप ये डिटेल में लिख भी चुके हो और सुन भी चुके हो. ये संकेत क्लियर है बेटे? ऋषभ, यस ऋषभ आपके लिए भी न्यू टॉपिक है. यस. ओके ओके, यस ऋषभ एंड प्रभ, बाकी सब ये कर चुके हैं, सबको पता है इस टॉपिक के बारे में. Yes, ma'am. ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स.
अब हम प्लांट्स की जब बात करेंगे, प्लांट्स दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड Sunlight. वाटर, सनलाइट, इन विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर। तो आप लोगों को मैंने बताया था इसमें 4 चीजें चाहिए, CO2, वाटर, सनलाइट। सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? ग्रीन कलर पिगमेंट क्या है? Chlorophyll. Chlorophyll. क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 प्लस रिलीजेस ऑक्सीजन। और आपकी एनसीईआरटी में इसको करेक्ट किया हुआ है, इस इक्वेशन को 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 Well, plus tricky. 6O2 plus 6H2O. This is given. In some books it is 6H2O. कईयों में यहाँ पे 6 लिखा होगा। कोई है ऐसा बच्चा जिसकी किताब में 6 लिखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Parjot. ओके ओके। तो हाँ, वरजोत की और 3 बच्चे बताया जिन्होंने, जिनकी किताब में यहाँ 6 लिखा हुआ है, बट अदरवाइज in all the books it is written 6CO2 plus 12H2O in the presence of 6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. And what is this? Glucose. ग्लूकोज। तो खाना बन गया। अब ये खाना जब बना तो ध्यान देना, खाना बनना जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें ये इवेंट्स होते हैं, देयर आर 3 इवेंट्स, सबको लर्न भी थे, सबके लिए रिवीजन है। सिर्फ प्रभ और ऋषभ ध्यान से सुनना कि जो खाना प्रोसेस जो है इसमें ये खाना बॉडी में फॉर्म करते हैं। तो इट हैज 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो लुक ऑन योर स्क्रीन, सबसे पहले प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना किसने किया है? कौन एब्जॉर्ब करेगा? Chlorophyll. क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सिंपल। क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सिंपल। दूसरा स्टेप क्या होता है? ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका स्टेप का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर ये पानी को तोड़ते हैं। पानी को किस में तोड़ेंगे? पानी में क्या क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किससे निकलेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इसी में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू, क्या क्या स्प्लिट हुआ था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप आता है इसी के अंदर। थर्ड स्टेप इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। कहते हैं ग्लूकोज किससे बना होगा? कार्बन है तो किससे बना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, या मैंने क्या लिखा था? ग्लूकोज। तो आपके पास सिर्फ 3 इवेंट्स हैं and these events are already given in your NCERT. Tell me the page number. Already आपने लिखा हुआ है 96. 96. Open, yes, open your books for page 96 everyone. ऊपर टॉप पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड ऑक्सीजन। थर्ड दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। किसको लर्न हो चुके हैं? रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। वरजोत सुनाओ बेटे। श्रेया, 3 ओके। types, ma'am. हाँ, इवेंट्स, यस। Absorption of sunlight by chlorophyll. Reduction of नहीं, कन्वर्जन ऑफ लाइट। conversion of light into chemical splitting of H, and there is a reduction of carbon dioxide into carbohydrate. Conversion of light into
yes, बोलो, दोबारा बोलो. into chemical, ma'am. Mm-hmm. And third one is, ma'am, a reduction of carbon dioxide in carbohydrates. Yes, into carbohydrate. तो I think सभी को clear हो चुका है ये चीज. तो there are 3 events which help in formation of food. तो ये points आप लोगों को learn करने हैं because ये 3 marker question आता है. List 3 events that take place in the process of photosynthesis. तो पहले sunlight ने, look on your screen, sunlight जो है वो absorb होती है chlorophyll से, फिर पानी टूटता है, पहले sunlight absorb, water splitting हुई, H2NO2, फिर CO2 से बन गया ग्लूकोज रिडक्शन से. सिंपल प्रोसेसेस है. अब मैंने आप लोगों को, क्या आप लोगों को क्लियर है? प्रभजोत एंड ऋषभ, Yes, are these ma'am. points okay, both of you? Yes, Yes. okay. तो ये 3 पॉइंट्स आ गए इसके अंदर. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कंडीशंस में अगर हम 4 रॉ मटेरियल, मैंने आपको शुरू से बताया कि प्लांट को चाहिए हवा से CO2, फिर उसके बाद चाहिए पानी जो हम देते हैं पौधों को, फिर उसके बाद उनको चाहिए सनलाइट, और सनलाइट को ट्रैप करने वाला क्लोरोफिल. यस, तो ये 4 चीजें, 4 रॉ मटेरियल्स हैं व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. CO2 जो है जो CO2 है वो प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बताएगा कोई? Through tomato. स्टोमेटा. Stomata. स्टोमेटा. किसने दिया आंसर ये? Harika. हारिका, वेरी गुड. स्टोमेटा. तो स्टोमेटा 2 चीजें हवा से लेके आता है, CO2 एंड वाटर. इन रिटर्न प्लांट्स हवा में क्या दे देते हैं, बताएगा कोई? O2. Oxygen. O2. तो stomata helps in exchange of gases Gases. and yes, Transpiration. transpiration. सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा के 2 Exchange of फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड, मैंने साथ में लिखा बेटे. Transpiration. ओके, यस, ट्रांसपिरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? Also water through the aerial parts of aerial parts of the plant. हाँ, वेरी गुड. तो ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. भाप बन के उड़ते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन जो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ओके. फिर ये तो हो गया स्टोमेटा का फंक्शन, ये आपकी ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है. अब बात आती है सनलाइट की. तो सनलाइट में अगर प्लांट्स को नहीं रखोगे, देयर विल बी नो photosynthesis occurs only in the presence of sunlight. No sunlight means no photosynthesis. Chlorophyll के लिए हमने एक पत्ता लिया था, अगर किसी को याद हो, I used some term. I used one term. Variegated. Variegated. जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन होता है. ये सपोज ये इसमें ये पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट होता है येलो. Yellow. हाँ, तो धब्बे होते हैं इसके ऊपर. इस ऐसी लीफ को हमने क्या नाम दिया था? वेरीगेटेड लीफ. वेरीगेटेड लीफ हैज पैचेस. अब इसमें ना देख के ही पता चल रहा है, जहां ग्रीन है वहां क्लोरोफिल है, जहां येलो है वहां क्लोरोफिल है, वो होगा? नो, Absence of chlorophyll. एब्सेंस. इसका मतलब जहां क्लोरोफिल है वहां बना है खाना. एंड खाना किस फॉर्म में बनता है? यस काया?
यस, स्टार्च Non-starch. या फिर क्या लिखा हुआ है ऊपर Glucose. टॉप? ग्लूकोज. आई टोल्ड यू इट्स ग्लूकोज, इट्स नॉट ग्लू, इट्स ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा या फिर स्टार्च की फॉर्म में. एंड व्हाट इज द टेस्ट फॉर स्टार्च? Iodine. आयोडीन टेस्ट. जहां ग्रीन है वहां स्टार्च बना होगा, और स्टार्च का टेस्ट आप लोगों को बताया था. स्टार्च विल टर्न आयोडीन इनटू Blue Blue black. black. ब्लू ब्लैक. इंक का कलर आ जाएगा. जैसे आप ऐसे पत्ते को, ऐसे लीफ को, वेरीगेटेड लीफ को डालोगे आप किसी में, किसमें डालोगे? आयोडीन में. यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जहां पे भी ग्रीन है वहां पे ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इंक जैसा कलर होगा, और जहां येलो है वहां येलो ही रहेगा. दिस प्रूव्स दैट जहां क्लोरोफिल है वहां खाना बना है, और खाना था, स्टार्च था. स्टार्च का टेस्ट होता है कि इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन. किसी ने नहीं भूलना ये चीज. स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन. हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर? Clear now. Okay, Janvi, Varjot, Harika, Rohan, Adil, be quick. Bhavit, Ankit, Kaya, Chahat, Shreya. Yes, others. Only 10 has raised their hand. Sia, okay. Kamal, okay. Rishabh, okay. Okay, ठीक है बच्चे. Very good, Prab. Yes, ma'am. तो अब ये सारे प्रोसेसेस हो गए. ठीक है. अब इसके बाद जो मेन चीज आती है, अब इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहला प्रोसेस था डाइजेशन. इसके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं सबने. तो ऋषभ एंड प्रभ बाकी सब शेयर कर देंगे, तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स. Okay, ma'am. ओके. तो डाइजेशन में जो, अगर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इट स्टार्ट्स विद माउथ. थोड़ा सा क्विकली चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको समझ आ जाएंगे. आई एम ट्राइंग टू यूज इजी लैंग्वेज फॉर एवरीवन. तो अगर हम बात करें नोज और माउथ, they have a common opening which is known as, yes, Buccal cavity. no, buccal cavity mouth के अंदर होती है. pharynx. Pharynx. Sorry. हाँ, Pharynx. pharynx. nose और mouth, आपको बताया था कई बार आप पानी पीते हो तो नाक में चला जाता है, because there is a common passage. There is a common passage which is between nose and mouth, and that passage is called as pharynx. हाँ. तो ये प्रोसेस है फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद ये कहाँ जाता है हमारा, जिसको फूड पाइप बोला जाता है. व्हाट इज द अनदर? Esophagus. Esophagus. Another name? Is- Esophagus. तो another name for esophagus is food pipe. खाना सीधा कहाँ जाता है? J shape? Stomach. Stomach. स्टमक में. स्टमक से वो कहाँ जाता है? इतना Liver. जला हुआ कौन? लिवर. लिवर क्या सिक्रीट करता है? नो, पहले Bile. लिवर में बेटा. लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस. Bile juice. Bile juice. बाइल जूस जाके स्टोर कहाँ होता है? Gallbladder. Gallbladder. गॉल ब्लैडर. देखा, अपने आप याद रह गया ना. गॉल ब्लैडर से क्या सिक्रीट होता है? किसके पास जाएगा? सिक्रीशन कहाँ जाती है? Small intestine. Small नो intestine. नो Salt बच्चों, के बाद Pancreas. Pancreas. पैनक्रियास. यस यस, पैनक्रियास. और पैनक्रियास जो है, फिर वो लेके जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. सब पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच रहे हो, इतनी जल्दी है सबको. स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. Undigested food taken large intestine. यस यस.
और लास्ट में आता है रेक्टम और एनस. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज एनस. अब मैंने सिर्फ आपको डायग्राम बना के दिखाया है, एंड दिस डायग्राम इज ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन योर एनसीईआरटी. Is my screen visible to everyone now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. तो नोज में नोज और माउथ की कॉमन ओपनिंग है फेरिंग्स. माउथ में हमारे पास पार्ट्स होते हैं. एक है टीथ which help in cutting, biting and chewing, and we have tongue. हाँ, पहले एक बार सुन लो बेटे. टंग और टीथ, इन दोनों के मैंने आप लोगों को फंक्शंस लिखवाए हुए हैं. टीथ एंड टंग. टीथ का मेन फंक्शन क्या होता है? कटिंग, बाइटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग. आप कभी चावल का दाना या कनक का दाना, व्हीट ग्रेन अगर आप मुंह में डालते हो, इवन पॉपकॉर्न्स में कनक का वो जो मेज, सॉरी नॉट मक्की का दाना अगर आप मुंह में जाता है तो उसमें आप क्रश करते हो. दैट इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग. कटिंग, बाइटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग, ये सारे हमारे टीथ पार्ट का फंक्शन है. टंग का मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड टेस्ट. तो हमारा टेस्ट टंग प्रोवाइड करता है. दूसरा टंग का फंक्शन क्या होता है? टू मिक्स फूड विद सलाइवा. अपनी थूक के साथ पूरा खाना जो है बॉल शेप में. मैंने शायद बताया था कि अगर बच्चा मुंह से खाना निकालता है तो आपने देखा होगा वो व्हाइट कलर का हो जाता है और बॉल शेप में होता है. और टंग का ही एक और फंक्शन होता है, टू पुश द फूड इनटू द ईसोफेगस. ईसोफेगस का दूसरा नाम था Food pipe. Food fight. फूड पाइप. फूड पाइप. खाना यहाँ ना अड़े तो यहाँ पे एक स्पेशल Wave. इसके अंदर वेव ऑफ कंट्रैक्शन, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? Peristalsis. पेरिस्टालिसिस. PERISTALSIS. पेरिस्टालिसिस बहुत बच्चों के लिए नई टर्म है. तो पेरिस्टालिसिस इज वेव ऑफ कंट्रैक्शन. तो वेव ऑफ कंट्रैक्शन से खाना जो है नीचे सीधा जाता है किसके अंदर? स्टमक में. जे शेप स्टमक. तो स्टमक में जो भी खाना सीधा जाता है स्टमक में हमारे प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है? यस, HCl. HCl. तो खाना सीधा तेजाब में जाता है और जल जाएगा. और आपको बताया था क्योंकि ये एसिड में जलने काला होना चाहिए, बट यहाँ पे ग्रीन हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो एसिड है इट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यस. तो जला हुआ खाना जो है बिल्कुल एसिडिक फूड है. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. Bile juice. बाइल जूस. बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ स्टमक एंड टू न्यूट्रलाइज फैट, इमल्सिफाई फैट. फैट को इमल्सिफाई करना. इमल्सिफाई मतलब मिक्स करना. फिर जो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है वो स्टोर कहाँ होता है? यस, Gallbladder. गॉल ब्लैडर में. तो गॉल ब्लैडर में जाके ये स्टोर होगा और जब यूज चाहिए होता है, जब ये यहाँ का गंदा जो एसिडिक फूड आएगा तब जाके वो यूटिलाइज होता है. पेनक्रियास का मेन फंक्शन क्या था? टू सिक्रीट Protein, fats, Protein, fat, and नो. enzymes and अरे hormones. हाँ, पेनक्रियाटिक जूस. इतने
क्यों कंफ्यूजन हो रही है सबको? इट इज Ma'am, पैंक्रियाटिक नो बेटे, इट इज पैंक्रियाटिक जूस. तो मैम प्रोटीन्स तो मैम उसमें लीवर में. यस यस. No, ma'am. Liver fats करता secretes बेटे- HCl protein. अब एक मिनट, अभी मैंने प्रोटीन और उसका फैट का कुछ भी नहीं बताया आपको, सिर्फ मैंने सिक्रीशंस की बात की है. तो स्टमक ने सिक्रीट किया था HCl, लिवर ने सिक्रीट किया था बाइल जूस, पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया है पेनक्रियाटिक जूस. मैम पैंक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक जूस मैम what type मैम there is a पेनक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हो ना? yes मैम. ओके. अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च. फिर जब ये खाना पूरा वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्या होते हैं इसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई, which helps in absorption of food. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ बॉडी के बाहर आता है? एनस. तो अब जिसको नहीं समझ आया वो फिर से सुनना. माउथ में we have teeth and tongue. Main function of teeth is cutting, biting, chewing and grinding. Tongue का main function था To mix the food with saliva. And taste. Provide taste. yes. Tongue का main function था to provide taste, to mix the food and to push the food into the esophagus. फिर जब हमारा खाना फूड पाइप या फिर esophagus में चला गया, वहां कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालिसिस. पेरिस्टालिसिस इज वेव ऑफ कंट्रैक्शन जिससे हमारा खाना नीचे जाता है. और किस में जाता है वो खाना? स्टमक में. स्टमक क्या सिक्रीट कर रहा है? HCl. HCl. लिवर क्या सिक्रीट करता है? Bile juice. बाइल जूस. जो बाइल जूस है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू इमल्सिफाई Fat. हाँ, टू इमल्सिफाई फैट. और फैट, यस, fat emulsification, this is the function of bile juice and to neutralize the acidity of stomach. और फिर ये जाके लिवर, जो बाइल जूस है वो कहाँ जाके स्टोर होगा? नो, Gallbladder. गॉल ब्लैडर का सिर्फ क्या फंक्शन है? टू स्टोर Bile juice. बाइल जूस. पेनक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया था? Pancreatic juice. और फिर ये खाना कहाँ जाता है? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है? villi. Then it moves to Large intestine. and then it passes to Anus. anus. How many of you are clear with the labeling part? Please raise your hand. Janvi, Varjot, Adil, Harika. Be quick. Prab, very good, Prab. Bhavit, Rohan, Kaya, Soumya, Kamal. Very good. Ankit, Chahat, Sia, very good. Okay, Ankit, very good. Yes. Chahat, okay, very good. Shreya, very good. Rishabh, are you clear with the labeling part? Rishabh Thapar? Yes, ma'am. Okay. But can you speak with me? I'll ask the questions. Rishabh and Prab, please unmute yourself, both of you. Yes, ma'am. Prab and Rishabh, both of you just unmute yourself. I'm going to ask you questions. पहले खाना जो है वो कहाँ जाए, कौन से पार्ट में रहता है? Look on your screen and tell me the answer. Ma'am, into the mouth, and it is chewed by teeth. Teeth. And we have another thing in mouth, that is Tongue. tongue का major function क्या है? To provide Ma'am, it puts Saliva. moisture to the food. yes, taste and mixes the food. Then it moves to Esophagus. Pharynx and then esophagus. yes, pharynx and esophagus. There is a special wave of contraction in esophagus. What is that called? Peristaltis. Peristalsis. Peristalsis. Perfect, both of you. Then it moves to Stomach. Stomach. stomach secretes
hydrochloric acid, hydrochloric acid. Shabash. And then it goes to liver, liver secretes. bile juices, Bile juice. Okay. Bile juice क्या करता है? Main function क्या होता है? To emulsify emulsify fats, fat. Okay. Now Rishabh, tell me another next organ is Pancreas. pancreas. What it secretes? Pancreatic juice. Very good. Yes, Prab. Next it goes to small intestine, and then villi. villi. What is villi? They are there to absorb the food. Very and good. store it Small as well. finger-like projection. Shabash. Small finger-like projection to absorb food. Then it moves to Large intestine. large intestine. And then lastly, anus. Mm. हाँ, तो लेबलिंग आप लोगों को समझ आ चुकी है. I guess everybody is clear with this part. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So now I'm moving to the next part. अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जो इसका स्टमक है, स्टमक ने सिक्रीट किया था HCl, वो डाइजेस्ट करता है. आप लोगों ने सिर्फ सुनना है. इट डाइजेस्ट प्रोटीन. माउथ में हमारे एक चीज सिक्रीट होती है जिसको बोलते हैं सलाइवा. सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर. तो सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर. ओके. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हमारे उसके शुगर बोल दो या कार्बोहाइड्रेट. और फैट हमारा डाइजेस्ट हो रहा है लिवर में. पेनक्रियाटिक जूस अगेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ शुगर या कार्बोहाइड्रेट. अब खाना पूरा पच चुका है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट था, शुगर था या प्रोटीन था या फैट था. खाना डाइजेस्ट हो चुका है. दिस इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो डाइजेस्टेड फूड है दैट इज एब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैज विलाई. विलाई के दो फंक्शन होते हैं. एक तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. दूसरा इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रिच होती है. इट इज हाईली वैस्कुलर. कमल समझ आ रहा है बेटे? I'm So it is sorry. yes, yes, okay. तो ये दूसरा है. It has finger-like projections, villi, and it is highly vascular. तो दोनों चीजों की वजह से ये small intestine it helps in absorption of food. और जो food unabsorbed रह जाता है, unabsorbed या undigested food है that enters into large intestine and goes out to anus. तो question आता है where does Ma'am, large intestine also have a function to secrete salt and water. yes, to absorb salt and water. Okay, it absorbs the extra water and ions. Yes. Okay. अब क्वेश्चन आता है where does digestion of carbohydrate occur? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ होती है? टेल मी. Pancreas. और Tongue. yes, Mouth. mouth. It is mouth. Mouth में sugar digest हो रहा है और pancreas में sugar. Where does digestion of protein occurs? Stomach. Stomach. Where does digestion of protein of fats occur? Liver. 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 How many of you are clear with this idea of digestive system? Be quick. Please mute आपने yourself. एक चीज बताई Clear, ma'am. Clear. हाँ बोलो मैं- बच्चे. हाँ हाँ. मैम आपने एक चीज बताई थी और नीचे वो हाई कंसंट्रेशन में की मैम आप डायग्राम High में बताया था। डायग्राम में बताया था क्या नीचे चीज मैम, बच्चे? वेट, कहाँ पे बेटे? बोलो. नीचे जो आपने एनएस के पास मैम डायग्राम नहीं बनाया हाँ हाँ हाँ. मैम वो क्या चीज थी मैम मैं स्किप करी
In a villi, small finger like projections called villi. Okay. ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, आपकी क्लास में सिर्फ यश एब्सेंट है आज? Yes. ओके, तो ये आ गया आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम बात करें व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. डाइजेस्टिव सिस्टम इज, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, इट कंसिस्ट ऑफ अ पाइप जिसके दो एंडिंग्स थे. यस, माउथ एंड एनस. एक पाइप है जिसके दो एंड्स हैं. इसका, इस पाइप को हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल Element. प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड. जैसे यहाँ पे लिवर, पेनक्रियाज आ गया, यहाँ लिवर था, फिर गॉल ब्लैडर आ गया. तो डिफरेंट ग्लैंड्स आर अटैच्ड. तो इफ यू सी, लुक एट दिस डायग्राम, इट इज अ पाइप. पाइप विद टू एंडिंग्स. पहली एंडिंग, पहली ओपनिंग क्या है? माउथ. लास्ट ओपनिंग क्या है? बोलो. Anus. एनस. तो इट हैज टू ओपनिंग्स. और इस पाइप को नाम क्या दे दिया हमने? एलिमेंट्री कैनाल. प्लस इसके साथ जुड़े हुए हैं ग्लैंड्स. कहीं लिवर आ रहा है, कहीं स्टमक आ रहा है, कहीं गॉल ब्लैडर आ रहा है. तो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल and digestive glands. तो elementary canal plus digestive glands. पहले तो आप ये डेफिनेशन दोगे, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है और आपको सारी चीजें बता भी दी. अब कई स्टूडेंट ये पूछते हैं, मैम दिया हुआ था हमें ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट वाज इन दी 5 मार्कर क्वेश्चन. सिर्फ दे दिया लेबल करो 10 पार्ट्स या 8 पार्ट्स और ड्रॉ करो, बाकी कुछ नहीं पूछा था, लेकिन 5 मार्क का क्वेश्चन. तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसको बनाया, लेबलिंग की और प्लस ये 2 लाइंस ऐड की कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल, और प्लस उसमें ब्रीफ क्वेश्चन उसके पार्ट्स के बारे में लिख भी दिया. और दूसरे बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया विद ऑल द लेबल पार्ट्स, बट उसने लिखा 0, कुछ भी नहीं लिखा. तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया एफर्ट, यू हैव मेड द डायग्राम एज वेल एज यू हैव रिटन द पॉइंट्स ऑल्सो, जो मैंने आपको बताया कि माउथ में टंग है, टीथ है. तो टीचर विल डेफिनेटली गिव यू फुल मार्क्स. और दूसरा बच्चा बोलता है मैम डायग्राम ही पूछा हुआ था, मुझे तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए, मैम ने मेरे मार्क्स काटे, उसको दे दिए फुल मार्क्स. द रीजन इज दैट स्टूडेंट हैज टेकन एक्स्ट्रा एफर्ट. तो आप लोग भी साइंस में इवन इफ भी मार्क्स काटे जाते. Ma'am, in Yes. our school, if we do extra work, then teachers cut our marks. हाँ बच्चे, बट बोर्ड्स में अगर आपसे बायो में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बायो, हाँ अदर जैसे सोशल में अगर आपका नहीं पूछा हुआ था, आपने सब कुछ लिख दिया, देन दे विल डिडक्ट मार्क्स फॉर श्योर. कि आपने 2 पेजेस का लिख दिया आंसर, इट वाज आस्क्ड फॉर ओनली अबाउट द हिस्ट्री और आपने उसके बारे में लोकेशन और सब कुछ दे दिया. तो yes, in that case they'll deduct marks, but in case of science if you do, क्योंकि साइंस में बच्चे अगर आपने ड्रॉ विद लेबल पार्ट्स अगर आ गया, ड्रॉ लेबलिंग, तो लेबलिंग में आपको यू हैव टू गिव 1 or 2 लाइन अबाउट दैट पार्ट आल्सो. अगर यही क्वेश्चन पार्ट्स में आए, ड्रॉ द डायग्राम, दूसरा आ गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl. अब 2 क्वेश्चंस आ गए ना, 5 मार्कर में था, फिर आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, 1 लाइन ये लिख देना और प्लस फिर अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर. जब 5 नंबर में दिया है तो क्या आपको जस्टिफाइड लगता है कि सिर्फ डायग्राम बना के आप कंप्लीट यू विल गेट फुल मार्क्स? नो. मैम. तो आपको थोड़ा वाइजली चलना है, खुद अपना डिसीजन लेना है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स. तो यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि एक NTSC के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा बोर्ड्स के लिए. तो बोर्ड्स के लिए यू हैव टू बी बिट एक्स्ट्रा. ओके, यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर बोर्ड्स. अब अगर बात आती है व्हाट इज द रोल ऑफ, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl. कहते हैं इस HCl का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ HCl, अब मैंने बताया था आप लोगों को, इतना स्ट्रॉन्ग HCl होता है. यस, आदिल बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl. यस आदिल.
Kills the germs. Yes, next point. Yes, Ma'am, Adil will. Adil, let Adil explain what is the function of HCl. Adil, look at the diagram and tell me HCl क्या कर रहा है? Blue में क्या लिखा हुआ मैंने? Okay, your mic is not working. No worries. Adil, just write down in message box. Write down what is the answer. What is the function of HCl? एक तो हो गया, it kills germs. दूसरा, be quick. What is the second function of HCl? Blue में लिखा हुआ है. Already written with HCl in the blue line. Yes, it helps in digestion of proteins. Very good. तो अब सबको समझ आ गया कि HCl के दो functions हैं. It helps in killing germs and activates enzyme for protein digestion. Excuse me. Yes. If this question comes in 5 marks, how we can attempt? नहीं नहीं, ये नहीं आएगा बेटे. It's a 2 mark question. इससे ज्यादा बनता ही नहीं. अब मैंने आपको बताया था कि गलती से आपके मुंह में कोई इंसेक्ट चला गया, बात कर रहे हो और एकदम हवा चल रही है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन. यू आर राइट प्रभ. प्रोटीन में ना, जैसे हमने चिकन खाया, पनीर खाया, फिश खाई, एग खाया, दे आर ऑल प्रोटीनेशियस इन नेचर. आपके पेट में जाएगा ये खाना तो HCl अपने आप सिक्रीट होगा और वो एक्टिवेट करेगा. HCl का एक मेजर रोल होता है टू एक्टिवेट एंजाइम्स फॉर प्रोटीन डाइजेशन, और वो प्रोटीन का नाम यस Pepsin and trypsin. yes pepsin and trypsin. So they activate enzymes for protein digestion and the enzymes are very good. Prabjot, these are the enzyme pepsin and trypsin. Kill germs. So मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप गलती से किसी का बाल मुंह में चला जाता है खाना, जैसे आप बाहर गए हो, थिएटर में खा रहे हो, आपको याद है, तो बर्गर में Insects. तो इंसेक्ट्स, तो ये वो उसको किल कौन कर रहा है? HCl in stomach. Helps in digestion of protein. Now what are the different processes of nutrition? I'm moving to the next part. I guess सभी को ये बात समझ आ गई है. Now I'm moving to the next part, which is process of nutrition. सबके लिए रिवीजन है, नोट्स बहुत अच्छे बना चुके हो, और ऋषभ और प्रभ आप लोगों को भी नोट्स आ जाएंगे, ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, तो आप लोग भी इसे कंप्लीट करना. बस सिर्फ समझने वाला पार्ट पहले करो. सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ. खाना खाना प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन. फिर ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डाइजेशन. ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स. खाना खा लिया है, अब क्या होगा? Absorption. Absorption. The simpler food is then absorbed in body. Absorption कहाँ होती है? Stomach. No. Small Small intestine. intestine. हाँ, small intestine. अरे कितनी बार, हाँ, विलाई में absorption एक ही जगह होगी absorption. फिर इस जो absorbed food है इसको हम खाते हैं, इसको बोलते हैं assimilation. खाना जो खाया हमने, assimilation. Assimilation is utilization of food for growth, repair and energy. खाना अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, अपने रिपेयर करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स हैं, और एनर्जी के लिए. तो assimilation is utilization of food for growth, repair and energy. आपकी बॉडी में चोट लगी है, खाना नहीं खाओगे तो रिपेयर, हीलिंग नहीं होगी. कहते हैं बहुत बीमार हो, सॉरी टू से, अगर कोई हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो उसको बोलते हैं खाना खाओ तभी ताकत आएगी. आपने सुना है? क्योंकि रिपेयर हो रही है अपनी बॉडी. हाँ मैम, fruits. यस, फ्रूट भी. वहां तो बेटे चलो दाल देते हैं कि जो इजीली डाइजेस्टेबल, खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, है ना, जो भी. फिर जो खाना हम पचा नहीं सकते वो हमारी बॉडी से निकल जाता है. अनडाइजेस्टेड फूड, आई टोल्ड यू, इट इज नॉट डाइजेस्टेड फूड, इट इज अनडाइजेस्टेड फूड विच इज थ्रोन आउट ऑफ बॉडी थ्रू एनस. Egestion, process of elimination of undigested food. How many of you are clear with this topic now? Raise your hand. Yes, Adil, clear hai bete? Shabash. Ingestion, intake of food. Digestion, breakdown of food. Absorption,
absorption of food in small intestine, assimilation, utilization of food for growth, repair, and energy. Very good, Sia. Okay, Kamal, very good. And last is digestion. Digestion is removal of undigested food. कमल आज आप मेरे रडार में मुझे दिख रहे हो. आज आप 7:15 से पहले नहीं लीव करोगे क्लास. ओके सभी इस क्लास को बच्चे जब तक आप लोगों का की क्लास में जब तक आई विल नॉट आस्क यू टू लीव द क्लास, यू आर नॉट सपोज्ड टू लीव द क्लास. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. आदिल. Yes, next topic is respiration. Okay. Respire करना मतलब सांस लेना, जिसमें हम दो प्रोसेसेस को बोलते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. हमारी जब हम एक्सहेल करते हैं कौन सी गैस होती है हमारी बॉडी में बाहर CO2. निकलते हैं? CO2. CO2 को टेस्ट कैसे करते हैं? वेरी गुड, वेरी Lime गुड. It turns lime water milky. प्रभजोत एंड ऋषभ, ये आपके लिए न्यू टर्म है. लाइम वाटर चूने वाले पानी को बोलते हैं. Yes, ma'am. और दिस वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब इसको आप CO2 ऐड करते हो, इसमें CO2 का टेस्ट ही यही है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. मिल्की क्यों बन जाता है? क्योंकि क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट विच इज मार्बल. तो पानी जो है दूध जैसा बन जाएगा. पी नहीं सकते, दूध नहीं है ये चूने वाला पानी. और ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें हम एक पिचकारी या पिस्टन से हवा डालते हैं तो कुछ नहीं होगा उसको लाइम वाटर को, लेकिन जैसे ही आप अपने एक्सहेल करोगे तो एट लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. अब आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक इट्स पेज 102 जहाँ पे वो चार्ट दिया हुआ है. यस, व्हाट इज द पेज नंबर? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वाला 101. 101. Ma'am, 102. हाँ, I think it's 102. I guess it's 102 only. Check. तो उसमें ये डायग्राम बना हुआ है कि glucose, which is a 6 carbon compound, is changed into 3 carbon compound. Obviously, अगर ये 3 है तो कितने बने होंगे? 2 molecules. 6 carbon थे, टूट के 3 में 2 बन गए. तो ये ग्लूकोज है which is changed into pyruvate in cytoplasm. और फिर ये 3 पैसेज से 3 पाथवे से चेंज होता है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 और लैक ऑफ O2. बहुत इजी डायग्राम है, 2 बार बनाओगे लर्न हो जाएगा. बट दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कभी पेपर बना ही नहीं है ये क्वेश्चन ना आए. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोचॉन्ड्रिया बोलते हैं, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स. Sorry, absence of oxygen is in the yeast. And lack of oxygen in muscles. Lack of oxygen in yeast. Lack of oxygen in muscles. और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो टूट जाता है CO2, वाटर और एनर्जी में. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो टूटता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में. लैक ऑफ ऑक्सीजन में किसमें टूटता है? यस, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. इन दोनों में, इसमें भी 2 ATPs बने, इसमें भी 2 ATPs बनेंगे, बट इसमें 38 ATP. ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. जिसको नहीं समझ आया वो एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देखना. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड
which is changed into 3 carbon compound pyruvate in cytoplasm. Pyruvate के 3 passages होंगे: presence of oxygen, absence of oxygen, lack of oxygen. Presence of oxygen occurs in mitochondria, forming CO2, water, and energy in the form of 38 ATP. Absence of oxygen in yeast, ethanol, CO2 और energy में कितने ATPs बनाए? Yes, 2. 2 ATPs. 2 ATPs. और lack of oxygen किसमें होता है? Muscles में, जहाँ पे lactic acid और ATP कितने? फिर से 2 ATPs. 2 ATP. How many of you have learned this diagram? Very good, Prabjot. Okay, only 3 students. Okay, Rohan. Okay, Varjot. Okay, Harika, Shabash, Sia. Very good, Sia. Okay, Janvi. Okay, maximum students have already learned this. तो आपको बताया था मैंने इसको तरीका क्या लर्न करने का. ग्लूकोज 6 कार्बन चेंज इनटू पायरुवेट 3 कार्बन इन साइटोप्लाज्म. 3 प्रोसेसेस हैं: प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, CO2 वाटर एनर्जी. एब्सेंस होता है यीस्ट में, इथेनॉल CO2 एनर्जी. लैक होता है मसल्स में, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग 2 बार बनाओगे इस रिएक्शन को, आपको लर्न होनी शुरू हो जाएगी ये. और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. आई विल नॉट डिस्कस दैट टॉपिक इन दिस क्लास बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हो जाएगा. और इसी चैप्टर की रिवीजन चलेगी अभी 2 क्लासेस में. और any question till this topic, yes, let me know. Adil, do you have any question? Or maybe in the next topic, let me know. Adil, if you have any question in this topic or maybe in the next topic,